friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are bringing this keywords based learning. दोस्तों words are very important. ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वर्ड्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके पास जब एग्जाम मई के महीने में आएगी ओके एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मॉक फ्रॉम दिसंबर जनवरी मंथ. ठीक है, आप उसके बाद वोकैब के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हो. This is a window that is, you can say September, October, November. These are the 3 months where you are going to put a lot of efforts on your vocab. Okay, so Pro Talent brings to you this wonderful module of these keywords. Let me start to talk about आज किस तरीके के word करने वाले हैं. Today we are going to talk about 7 group of words. One group of word which talks about someone who is not doing the work properly. Whether his efficiency is not okay, whether his way of method, that means is very awkward in terms of doing it, clumsy in terms of doing it, or his intentions are not good, so thereby he is lazy. ठीक है, वो हम देखेंगे. Then there are people who are doing their work properly. Yes or no? So how effective and powerful their work is and what kind of word we can devote to them. Someone's work you can trust upon. So possibly someone is doing work properly or someone's work you can trust upon. They may be similar kind of word. Okay, someone who is fearless and someone who is a fearful. So you can use these words. So one group of word are similar. Uska direct opposite are the fearful kind of people. And then we are going to talk about people who are shy but at the same time flirty. ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर, आप ऐसे वर्ड यूज करने वाले हो? नहीं, इतने बुरे भी नहीं होंगे, बट वी विल ट्राई एंड गिव यू सम आइडिया अबाउट इट एंड हु इज हार्ड वर्किंग. ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो ये रहे आपके सामने, यू कैन से टोटल 8 वर्ड्स. द पीपल हु आर नॉट स्किलफुल, द पीपल हु आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, people who are lazy. Okay, so these are the kind of words you can use. Maladroit. So adroit is a skillful guy. Mala means bad. Maladroit is the person who is unskillful. Gosh, ठीक है, clumsy. Lummox, ठीक है, slob, sluggard. Sluggard वर्ड आपने सुना होगा, laggard भी सुना होगा, Haggard आपके सामने आया, and busy work. चलिए देखते हैं एक एक करके. Maladroit is incompetent person. He is obviously unskillful. Inept, ये वर्ड देखिए दोस्तों, inept. Apt होना, ठीक है, एक वर्ड है एप्ट और दूसरा है ये एप्ट. ये एप्ट होना, एप्रोप्रिएट होना, दिस एप्ट हैविंग एबिलिटी, हैविंग स्किल टू डू दैट वर्क. ओके, सो दिस गाइज आर बंगलिंग, दिस गाइज आर अनेबल टू मैनेज their activity, maladroit. So when they are given examination form and then they are asked to fill the OMR, ठीक है, वो एकदम clumsily OMR को fill करते हैं. ये सनो बहुत गलतियां करते हैं. ठीक है, क्लॉडिश होते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड होता है. ठीक है, कैप्टन MS धोनी was upset by maladroit fielding of some of the players. ठीक है, ऑब्वियस मतलब MS धोनी के सामने आप फील्डिंग अच्छे से नहीं करोगे एंड दैट टू इन अ maladroit manner, not done. Yes or no? Clumsily if you are doing it, that's called maladroit. Then you comes gosh, ठीक है, which is socially awkward. Someone who is socially awkward, उसका अपोजिट क्या होगा? Sophisticated. टाई वाई पहन के बैठा होगा आदमी, एलिगेंट है, सुआव है, सोफिस्टिकेटेड है, अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाता है. Yes or no? Socially awkward. Yes or no? You might have seen a movie, okay, which is you can say Tanu Vets Manu. Yes or no? In that, the second, you can say Tanu Vets Manu part 2 involves the second character. Okay, that is हरियाणवी भाषा जाट बोलने वाली that तनु, है ना. ठीक है, नाउ शी वॉज सोशली ऑकवर्ड इनिशियली, है ना, ऐसा दिखाया गया था. बराबर, वो सोसाइटी की बातों को नहीं मानती है, मारने पे आ जाती थी. दैट इज कॉल्ड सोशली ऑकवर्ड. टैक्टलेस, गॉकी बोलते हैं इसको. अ शाई एंड गॉश टीनेजर, ही वॉज मॉक बाय हिज क्लासमेट. बहुत बार टीनेजर्स आर सोशली ऑकवर्ड. They don't feel comfortable
going out with the people, ठीक है, talking to them, whatever the kind of challenges being raised in terms of talking, okay. बहुत बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी पर्सनल फीलिंग शेयर करने के बारे में बात आती है, कभी अपने एफर्ट के बारे में बात आती है, कभी अपने फेलियर के बारे में, कभी अपने सक्सेस के बारे में, और ऐसी बातों को टीनेजर्स को लोगों के सामने रखने में पक्का दिक्कत आती है, ये सुनो। तो ऐसे समय पे वो बन जाते हैं गॉश, ये सुनो। सिमिलरली लमॉक्स is a clumsy and stupid person. It's a singular, and Lummoxes are the word which are the, you can say, plural of it. He is ruddy, great Lummox, and getting bit too full of himself. Is a clumsy and stupid guy. Okay, very clumsy and a stupid guy. Okay, for example, if you might have seen a movie called Andaz Apna Apna, in that you can say Salman Khan played a role of Lummox, a very stupid guy. Okay, ठीक है, वेरी स्टूपिड गाय. सो दे आर द पीपल और वेरी स्टूपिड, मारने के लिए तैयार, ठीक है, झगड़ने के लिए तैयार, ठीक है, बट दे आर नॉट नोइंग व्हाई आर दे डूइंग इट. क्लमजी, स्टूपिड पीपल. ओके, स्लॉब इज लेजी लाइक दिस, है ना भैया. मतलब ये अगर लॉकडाउन में घर में पापा मम्मी नहीं होते, ठीक है, तो भैया अपना रूम ऐसा ही होता, बराबर. कहीं पे चिप्स पड़ी है, कहीं मैकडी का सामान लाखा पड़ा हुआ है, कहीं पे अपना क्लास चल रहा है, पता नहीं क्या क्या. लेजी एंड मैसी पीपल, है ना. आपका जो टेबल अभी आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो उसको देखो, ठीक है, इट इज़ फॉर श्योर गारंटीड बोलने के काबिल है कि आप स्लॉब हो, ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं, पर अगर आप नहीं हो तो गुड है, बराबर है. गेट आउट ऑफ योर बेड यू फैट स्लॉब, दिस इज हाउ पीपल से. Okay, sluggard. Sluggard is lazy and sluggish people. This is generally referring to someone in the office who is very slow in the work. Okay, when you go for trekking and there is sluggard with you, you are not okay with them because they are actually denying all the, you can say, enjoyment to the other people. I will not like a sluggard wear out my youth in idleness at home. ठीक है. सो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश है कि मैं स्लगार्ड बनना नहीं चाहता मेरे यंग समय पे. आई डू नॉट विश टू बिकम लेजी एंड स्लगिश. आई नीड टू रन एंड अचीव समथिंग गुड. ओके, laggard is a person who lags behind others in terms of progress. The laggard students were told to attend extra classes after school. ठीक है, many times that happens in the classroom. There are laggards available. Now what do? They actually put the entire class, you can say, little slow by asking such kind of questions, ठीक है, which are already being explained by the teacher. ठीक है, they are the laggard people. Okay, they are like sloth, है ना, they are like this sloth. Okay, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों. Haggard, looking exhausted, unwell, typically due to fatigue, anxiety, worry, tension. That is how, just like ये भाई साहब उसके मुंह के ऊपर कितना ज़्यादा, you can say, exhausted दिख रहा है. He looked pale and haggard after 80 hours of work per week. ठीक है, 80 hours of work per week. ठीक है. So there are some round, let's say, you can say 7 days, 80 hours. So per day someone is spending approximately more than 10 hours a day. क्या बात करते हो, 10 घंटे से ज़्यादा काम करने में आदमी थक जाता है क्या? मैं तो नहीं मानता, है ना. ठीक है, बिल्कुल अजीब बात है. चलिए, एनीवे, सो बिजी वर्क इज द गाय हु शोज टू अदर्स लाइक इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क. यस नो, बट इन फैक्ट इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस गाय, ठीक है, खड्डा खोद रहा है, मेहनत कर रहा है, पर खड्डा खोद के कहीं और परेशानी कर रहा है. ठीक है, बिजी वर्क कैन गिव यू रीअश्योरिंग स्मॉल बोर टास्क. ठीक है, सो दे आर गिविंग यू स्मॉल वर्क. ठीक है, बट दे आर नॉट डूइंग नेसेसरी वर्क. ठीक है, सही काम नहीं करे, क्वांटिटी का काम नहीं करे, ऐसे लोगों को बिजी वर्क बोलते हैं. विच मीन्स दिस ऑल आर ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग द वर्क what they are required to do. ठीक है, they are not doing work in a proper manner. Maladroit is unskillful, skill ही नहीं है. ओके, उस बंदे को अगर मैथ पकड़ा दिया, मैथ नहीं आता है उसको, तो इज अ मैलाड्रॉइड, मतलब क्लमजी है, पता नहीं नंबर कहाँ से कहाँ लिखेगा. गॉश इज अ सोशली ऑकवर्ड पीपल. लमॉक्स, ठीक है, आर लेजी. स्लॉब आर लेजी. Okay, sluggard, laggard are some of the other way, similar kind of people. Lummox
are the people who are rude and you can say unclear about what to do. ठीक है, देखने से लगता है ये आदमी काम कर लेगा पर नहीं कर पाएगा. स्लगार्ड लेजी है. ठीक है, स्लॉब लेजी है. स्लगार्ड ऑफिस में काम करने वाला स्लो बंदा. स्लॉब लेजी है ना, अपना मैसी काम करता रहता, कुछ करता नहीं है. Laggard, you can say in terms of intellectual part, in terms of understanding conceptually, this guy is slow. ठीक है, Haggard. Haggard is, you can say, someone who is dull, someone is, you can say, exhausted, someone is pale. And busy work is just showing he's busy. Okay, great. Next group of words are the people who are good people, who are doing good work, meticulous work. छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हुआ. डिलीजेंट, फॉर्मिडेबल, रिजोल्यूट, स्टॉन्च, स्टॉलवर्ट, इंडोमिटेबल. ठीक है, इनसुपरेबल, इंडिफेटिगेबल, इनएक्सोरेबल. पता नहीं क्या क्या वर्ड दिख रहे हैं. ये सुनो दोस्तों, सब काम के वर्ड आपके लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं. ठीक है, सो यू शुड नो दिस वर्ड्स लाइक समवन हु इज डूइंग मेटिकुलस वर्क, ही इज पेइंग ग्रेट अटेंशन, लाइक दोस स्विस वॉचेस, स्विस वॉच मेकर्स. ठीक है, इस तरीके से शांति से छोटी छोटी चीज़ें सही सही जगह पे लगाते थे, अपने हैंडमेड you can say घड़ियाँ बनाते थे. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट you can say suddenly all this electronic watches have come and the game of Swiss maker was lost. ठीक है, लोग उसको खरीदते नहीं थे. Anyway, so what is the meaning of meticulous? Someone who's a who is taking the painstaking effort. दोस्तों, painstaking effort और painful efforts अंतर है. When you are learning vocab, you are doing painstaking effort. It is detailed. It is very careful. है ना? You are very conscientious, diligent, rigorous efforts you are putting. Painful, दुख होना. ठीक है, शब्द याद ही नहीं रहता है सर, क्या बोले, है ना, आपने बोला ये वर्ड करो, फलाना करो, निकना करो, सर याद ही नहीं रहता, हम क्या करें. सो दैट इज हाउ पेनफुल. ओके, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेनफुल हियर. ओके, पेनफुल इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट. व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज painstaking. Michelangelo meticulously painted the Sistine Chapel ceiling in the Vatican City. We can say painted it, you can say meticulously, painstakingly. छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ. कितना ध्यान रखना पड़ता है when you are going for a painting. Diligent is an hard-working, industrious guy. Okay, he is very much, you can say, enterprising in nature. Okay, he is assiduous. Okay, मतलब वो गधे जैसा काम करने वाला. अगर आप उसको याद रखें, नो मतलब याद रखने का ट्रिक है, अदरवाइज कोई नहीं. ओके, ही हैड अ रेप्यूटेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि गधे जैसा काम करने वाला. ओके, ही इज डिलीजेंट, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है. ही हैड अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग वेरी डिलीजेंट worker in the office and he was always praised by the bosses. Formidable. Okay, he put up formidable performance. England cricket team, you can say, put up a formidable performance in the third, you can say, test match. Okay, इंडिया की हालत बर्बाद कर दी इन्होंने. Okay, formidable, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया ताकि लोगों को डर लगे, या तो रिस्पेक्ट हो, बराबर है, इंटिमिडेटिंग हो, बराबर है, डॉन्टिंग हो और इंस्पायरिंग हो. ये देखिए, फास्ट बॉलर्स all over the world considered Sachin Tendulkar a formidable batsman. Is well respected. यहाँ पे वर्ड क्या हुआ? Well respected. Formidable. Okay, formidable performance शो करना, which is you can say किसी को सामने वाले को लगना चाहिए डर कि भैया यहाँ तो जा नहीं सकते हैं. Resolute होना, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन है काम करके दिखाएंगे. That is called determined. Unwavering mindset के साथ. When student like you who are having unwavering mind to achieve, you can say, top rank in NLU, believe me, nobody can stop you. Okay, everyone knew she would clear the judiciary exam before, you can say, because of her resolute nature. अगर आप resolute हो, ठीक है, आप uncompromising हो, unshakable हो, resolved हो, single minded हो, बड़ा काम का है दोस्तों, है ना, बड़ा काम का है. ये एटीट्यूड चाहिए होगा आपको, है ना, ये एटीट्यूड आपको कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए चाहिए होगा. अनदर वर्ड इज कॉल्ड स्टॉन्च.
I am a staunch believer in religion, which means I'm very much committed, I'm devoted, I'm dedicated. That is how the word is called staunch. Yes or no? He was a staunch supporter of LGBTQ rights. What does that mean? He's committed person. It is not just staunch means someone who's very strong. Staunch means committed, putting efforts on a regular basis. That is called staunch. Stalwart, someone who is dependable supporter of an organization, who has achieved something great. You can say they are called stalwart. A very loyal and dependable supporter of an organization. A function was organized to honor the stalwart of the political party. Okay, the lady who is seen in this, you can say, photograph, she was termed as a stalwart फॉर बीजेपी. आई एम श्योर आपको पता होगा सुषमा स्वराज. ठीक है, इन्होंने किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ाया, इंडिया को अलग अलग जगह पे प्रेजेंट किया, अलग अलग भाषा में. संस्कृत भी अच्छे से बोल पाते थे, हिंदी में तो क्या ही बोले, कितना तगड़ा बोलते थे. इंडोमिटेबल स्पिरिट, अनकॉन्करेबल, जिसको आप जीत ही नहीं सकते हो. इनविंसिबल, जिसको आप हरा ही नहीं सकते हो. अनबीटेबल, अनएसेलेबल, उसका अपोजिट क्या होगा? वीक. वल्नरेबल. वंडर वुमन of the DC comic is known for her indomitable spirit and courage against adversity. जिस तरीके से वंडर वुमन इज अनकॉन्करेबल, सिचुएशन जो भी हो जाए, शी फाइट्स. ठीक है, एंड शी ऑलवेज हैव अ अगेंस्ट स्टेमिना टू विन. ओके, शी इज नॉट अफ्रेड बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, कोई भी पर्सनल इश्यू आ गया, ठीक है, उसका लवर मर गया था, है ना, उसका लवर मर गया था, उसको शायद एक से पकड़ के रख दिया था और मार डाला था, है ना, उसके बावजूद अनवेवरिंग माइंड के साथ, रिजोल्यूट माइंड के साथ वो लड़ती रही. ये इंस्पिरेशन हमें ये वंडर वुमन से मिलता है. इनसुपरेबल, ठीक है, जिसको आप सुपर मतलब ओवरकम नहीं कर सकते हो. अनसरमाउंटेबल, सरमाउंट करना, विच मीन्स कोई चीज़ को माउंट करना, कोई चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना. ठीक है भैया, ही सरमाउंटेड माउंट एवरेस्ट, ऐसे वर्ड करा जाता है. तो इनसुपरेबल, ही हैड इनसुपरेबल financial difficulties because of years of gambling and racking up credit card debt. क्रेडिट कार्ड खर्चा करते गए, गैम्बलिंग करता गया, पैसा ही नहीं रहा. अब कैसा हो गया? इनसुपरेबल. अब इसको तो कवर ही नहीं कर सकते. ठीक है, इतना डेट हो चुका है, इतना सारा पैसा हो चुका है डेट का कि वो अब उसको भरपाई ही नहीं कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड इनसुपरेबल. ओके, इनडिफेटिगेबल, जिसको डिफेट नहीं कर सकते हो, है ना. ठीक है, दैट इज हाउ द आइडिया इज. अनटायरिंग. Julia Roberts won Oscars for her Best Actress in 2001 for her portrayal of Erin Brockovich, to indefatigable environmental rights activist. बहुत ही मजेदार सी मूवी थी. एरिन ब्रोकोविच एनवायरमेंटल, यू कैन से, अधिकारों को बचाने के लिए वो क्या लड़ाई लड़ती है. इनएक्सोरेबल, इंटेंस, सिवियर, ठीक है, मतलब रिलेंटलेस बोल सकते हो आप. ठीक है, रुकने वाला नहीं है. ठीक है, आज सोचा है कि इतने वर्ड्स करेंगे तो करेंगे ही करेंगे भैया, जो हो जाए लाइफ में, जो आना है आने दो. ठीक है, मतलब आंधी आए, तूफान आए, जन्माष्टमी आए या राखी आए, पढ़ाई तो करूँगा. अनयील्डिंग, ठीक है, अनबेंडिंग, अनरिलेंटिंग, अनरिमिटिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनएक्सोरेबल. ओके, रेजिलियंट पर्सन, मतलब एक तरीके से क्वालिटी ऑफ विथस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. अचानक से कोई बड़ी परेशानी आ गई, आदमी रेजिलियंट है. ठीक है, तो उस परेशानी में से उठ के खड़ा हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो रेजिलियंट होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे. क्यों? आपने कोरोना काल को देखा है, आपने उन कोरोना काल में घर पे ऐसी परेशानी वाली पढ़ाई करी है, अभी भी आप कर रहे हो, आप रेजिलियंट हो. ठीक है, आप ऐसे बंदे हो, स्ट्रांग हो. ठीक है, आप परेशानी से रिकवर करके बाहर निकलते हो. द सोल्जर्स resilient nature is the reason that he survived the enemy prison camp. That is called resilient होना. बराबर है. ठीक है, मेटिकुलस हमने थोड़ी देर पहले देखा था दोस्तों. ठीक है, लीप फ्रॉग. व्हाट इज अ लीप फ्रॉग? जैसे बड़े बड़े जंप करना, दैट इज कॉल्ड लीप फ्रॉग. ठीक है, टू सरपास और ओवरटेक समवन. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हुआ, विथ 5 straight wins the team leapfrogged from the 5th to first place.
ठीक है, दैट इज ऑफ द आइडिया इज 5 स्ट्रेट विन। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड ने से यू कैन से ये आपकी थर्ड टेस्ट मैच के अंदर इतना बड़ा लीपफ्रॉग ले लिया था दैट इंडियन क्रिकेट टीम कुडंट मैनेज। यस और नो? तो ये हमारे सामने वर्ड थे, ठीक है। मेटिकुलस, diligent, formidable, resolute, staunch believer in certain thing, okay, insuperable, inexorable, leapfrog, ये वर्ड आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर आते हैं ऐसे लोग जिसके काम के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल है, इनफॉलिबल है, फुल प्रूफ है, अनफेलिंग है, लेकिन से एरोनियस, तो एरर करने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया। अनटेनेबल, ओके, वो हो गया चलेगा नहीं वैसा। रिलायबल, जस्ट इमेजिन इस तरीके की गेम के ऊपर आपको सामने वाला जो आपका यू कैन से पार्टनर है उसके ऊपर कितना रिलाई करना पड़ेगा। आप तो आंखें बंद करके जंप करोगे उसका हाथ पकड़ने के लिए। डिपेंडेबल, ठीक है। सो दोस्तों, आप अपने करियर में जब आगे बढ़ेंगे तो लोगों को ये विश्वास होना चाहिए दैट यू आर डिपेंडेबल लाइक राहुल द्रविड़। Yes or no? You are dependable like Rahul Dravid. I just want a good, reliable car, nothing flashy. चमकदार नहीं चाहिए, रिलायबल कार चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। अनरिलायबल नहीं चाहिए, डॉजी नहीं चाहिए। इनफॉलिबल, जो फेल नहीं हो सकता, वो मिस्टेक ही नहीं करता है। दैट प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अगर अपीयर करते हो तो आपके पास कैसा एटीट्यूड चाहिए? अनएरिंग एटीट्यूड। अनएरिंग मतलब एरर नहीं करोगे आप, ठीक है। आपकी क्लरिकल मिस्टेक नहीं होगी। आप एडिशन कर रहे थे 243 प्लस 123, आप एडिशन करते करते 3 + 3 6, 4 + 2 यू कैन से 4 2 मतलब 8 कर दिया तो नहीं चलेगा, मतलब ऐसी गलतियां तो नहीं चलेगी। The famous American Supreme Court, Robert H. Jackson, said that Supreme Court is not a final because it is infallible, but it is infallible only because it is final. मतलब सुप्रीम कोर्ट गलती है ना नहीं करती है इसकी वजह से वो फाइनल है, ना 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 ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है इसकी वजह से हम बोलते हैं कि वो इनफॉलिबल है। क्या मजेदार सा आर्ग्यूमेंट है। चलिए, ग्रेट। फुल प्रूफ होना, अनफेलिंग, ये तो पता ही होगा भाई। व्हाट इज अ फुल प्रूफ प्लान फॉर क्रैकिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। द हाउस वाज प्रोटेक्टेड बाय स्टेट ऑफ द आर्ट फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, एरोनियस कंटेनिंग एरर, है ना, समथिंग विच इज इनकरेक्ट। द जजमेंट was erroneous because it ignored the latest case law on the issue, ठीक है। It is erroneous, okay. People are making erroneous judgment on the others. People are writing erroneously, okay. So that is writing in a wrong way, making a judgment in a wrong way. That is what the meaning of erroneous, ठीक है। Untenable, okay, untenable. Supreme Court ने ये बोला था that you can say article number 66A of Information Technology Act 2000 is untenable considering the freedom of speech and expression. It is indefensible, जिसको आप डिफेंस नहीं कर सकते हो। सो गवर्नमेंट साहब, आपने बोला कि आर्टिकल नंबर 66A होना चाहिए, सॉरी, वो अनटेनेबल है, ठीक है। क्यों अनटेनेबल है? आप डिफेंस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सीधे आर्टिकल नंबर 19 यू कैन से के खिलाफ जाता है, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है, ठीक है। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये महत्वपूर्ण जजमेंट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का यू कैन से सेक्शन 66 है, नॉट आर्टिकल, सॉरी, दिस इज सेक्शन 66A, ये बोलता है कि अगर किसी ने कंप्यूटर माध्यम के द्वारा कोई ऐसी कम्युनिकेशन दी जो लोगों के मन में हेट्रेड पैदा कर सकती है, लोगों को हर्ट कर सकती है, डिफेम कर सकती है ना, तो भैया उसके लिए सामने वाले को जेल होगी, तो नहीं चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स पोजीशन दैट द इकोनॉमी इज डूइंग वेल इज अनटेनेबल सिंस द जीडीपी हैज बीन फॉलिंग फॉर द 3 years स्ट्रेट। ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है। आज की तारीख में भारत में बड़ी परेशानी है। इन्फ्लेशन तगड़े से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तगड़े से बढ़ रहा है, यस और नो। हाउएवर द ग्रोथ इज डाउन। भैया, इन्फ्लेशन जनरली ग्रोथ के साथ आता है, यस और नो, पर यहाँ तो इन्फ्लेशन है और ग्रोथ नहीं है। ऐसा क्यों?
किस वजह से हो रहा है, ये बड़ी परेशानी की बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझना वो बड़ी बात है। तो हमने वर्ड देखे, रिलायबल, ऐसा बंदा जो डिपेंडेबल है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। इनफॉलिबल, जो फेल नहीं हो सकता। फुल प्रूफ प्लान बनाया, ठीक है दोस्तों, मूवीज बनाने वाले कुछ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो इतना अच्छा फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं दैट प्रोड्यूसर्स आर यू कैन से एबल टू स्लीप टाइट इन द नाइट। अनफेलिंग, जो फेल नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं एरोनियस, जिसमें गलती है। अनटेनेबल, जो डिफेंसिबल नहीं है, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हो। इंट्रेपिड, ट्रेपिड वर्ड आता है, ट्रेपिड मतलब डर से कांपना, ट्रेपिडेशन, ओके, ट्रेपिडेशन मतलब डर से थर थर कांपना, दैट इज कॉल्ड ट्रेपिडेशन। इंट्रेपिड, भैया डरेगा क्यों, ट्रेपिड कांप ही नहीं रहा है, एकदम ऐसे कॉन्फिडेंटली किसी की आंखों में देखता है, दैट इज हाउ द इंट्रेपिड इज। फिस्टी, है ना, एकदम गुस्से से यूं, है ना। ऑडेशियस, भैया ये ना नेगेटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिवली मत यूज करना। ऑडासिटी, डोंट शो योर ऑडासिटी हियर, ऐसा अगर बोल दिया टीचर ने तो टीचर आपको डांट रही है, ठीक है भैया। देखो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, फियरलेस होना बहुत पॉजिटिव बात है। फियरलेस के लिए वर्ड है ऑन अ पॉजिटिव साइड ब्रेव, ठीक है। फियरलेस के लिए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव भी होता है ना फियरलेस, मतलब कोई डर ही नहीं है कोई भी चीज का, जाके ऑडेशियस वे में, रेकलेस वे में कुछ काम कर दिया, ऐसा नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। ये वर्ड है आपका कुड्स्पा। क्या वर्ड है, कुड्स्पा। कुड्स्पा मीन्स समवन हु इज शेमलेसली बोल्ड, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोल्ड है पर शेमलेसली है, किसी की कोई शर्म वरम नहीं है, ऐसा ही बंदा ऑडेशियस। ये सुनो, तुम्हारे पास 2 डिग्री है, ब्रेवरी और कुड्स्पा, उसके बीच में ब्रेवरी, है ना, मतलब पॉजिटिव साइड, कुड्स्पा मतलब नेगेटिव साइड। ब्रेवरी से धीरे 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 हम पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, ब्रेव, ओके, फिर आएगा बोल्ड, ओके, फिर आएगा आपका मतलब ब्रेजेन, ओके, ब्रेजेन से आएगा ऑडेशियस, ऑडेशियस से जाएगा कुड्स्पा। समझ सकते हो आप, मजेदार सा दुनिया है। ब्रेवेडो, व्हाट इज ब्रेवेडो, शोइंग ब्रेवरी। स्वॉशबकलिंग, मजेदार सा वर्ड है। इंट्रेपिड, फियरलेस, ब्रेव, करेजियस, द इंट्रेपिड यंग रिपोर्टर, ठीक है। आपने देखा होगा तालिबान में एक ऐसे दानिश खान करके भाई साहब थे, रिपोर्टर थे, रॉयटर्स के रिपोर्टर थे, फोटोग्राफर थे, और वो तगड़े फोटोग्राफ लेकर आते थे। तालिबान में उनकी हत्या करी गई थी, अफगानिस्तान में जब वो रिपोर्ट कर रहे थे तब उनकी हत्या करी गई। ये सुनो, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रेपिड यंग रिपोर्टर वेंट डीप into Maoist territory, so he's showing valor, he's showing bravery, he's showing gallantry। आपको याद होगा इंडिया में गैलेंटरी अवार्ड होता है, विच इज हाईएस्ट, यू कैन से वॉर टाइम गैलेंटरी अवार्ड। बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए, विच इज इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंटरी अवार्ड। ओके ग्रेट। फिस्टी, brave and courageous, spirited, lively, okay, just like young chaps like here, जो आपके सामने मतलब डॉगीज दिख रहे हैं, छोटे छोटे पपीज, है ना, वो फिस्टी होते हैं, है ना, गेमली होते हैं, उनको सब चीज़ों में गेम दिखती है ना। और वैसा द चैंपियन गोलियाथ वॉज फेस्ड विद अ फिस्टी चैलेंजर इन द फॉर्म ऑफ डेविड, है ना। डेविड वर्सेस गोलियाथ की लड़ाई, ये आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी तुरंत विकी खोलिए और देखिए क्या लड़ाई थी दोस्तों। डेविड वॉज अ फिस्टी गाय, करेजियस, ब्रेव, स्पिरिटेड, लाइवली, ओके, ठीक है। डरपोक नहीं था, टिमिड नहीं था, मीक नहीं था, टिमिड, मीक, ठीक है, ये उसका अपोजिट है। ब्रेवरी का अपोजिट है लाइवली, स्पिरिटेड का अपोजिट है ऑडेशियस, डेयरिंग बोलते हैं, मतलब ऐसा एक माउंटेन की एक इनसे रिज से दूसरे पे जंप करना, भाई साहब बड़ा बड़ा रिस्की काम है। ऑडेशियस है, नेगेटिव है। ओपनिंग हिज ओन स्टोर इन द मिडल ऑफ रिसेशन वॉज एन ऑडेशियस मूव, okay, it is daring, okay, willing to take bold risk। टिमेरियस, गम्शियस, क्या वर्ड है भैया, गम्शियस, वेंचरसम बोलते हैं इसको, ओके। वेंचरसम मतलब क्या, ऐसा बंदा कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना, एक रिस्क ले सकता है, ठीक है, ऐसे बंदे को वेंचरसम कर सकते हैं। ही कैन वेंचर आउट, गुड, मतलब डेवलपिंग योर वेंचर, okay, starting your venture। what do you mean by starting your venture?
you are, you can say, not knowing what will happen to you, but you will start. Okay, audacity, temerity, gumption, venturesome, ऐसे वर्ड बन सकता है. Bravado, bold in behavior, to impress the audience or to intimidate. Though his name was James, he did not possess any of, you can say, James Bond's bravado. है ना, वो होता था जेम्स बॉन्ड. क्या बोलता था? ठीक है, मतलब विशेष कि बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, और जो कॉन्फिडेंस के साथ, जो स्वैग के साथ, है ना, अपने आप को प्रेजेंट करता था, दैट इज कॉल्ड ब्रेवेडो. श्वासबकलिंग, ठीक है, बोल्डली एंगेजिंग इन, यू कैन से, डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर. ठीक है, लाइक जैक स्पैरो आपके सामने दिख रहा है भाई साहब, है ना. जैक स्पैरो इज दैट श्वासबकलिंग, बोल्ड है, डेयरिंग है, डेयरिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत रोमांटिक अप्रोच. ही प्लेड द रोल ऑफ श्वासबकलिंग रॉबिन हुड इन हिज नेक्स्ट मूवी. रॉबिन हुड, है ना, ये मजेदार सा एक से कैरेक्टर है. ठीक है, वो ऐसा श्वासबकलिंग है. हमारे यहाँ पे भी, जैसे बॉलीवुड में हमने भी हमारा अपना रॉबिन हुड निकाला था, चुलबुल पांडे. ये सुनो, ठीक है, रॉबिन हुड पांडे बोलते थे इसको. ठीक है, वो आइडिया भी वही था. ठीक है, ऐसा स्वैग के साथ काम करता था, डेयरिंग था, रोमांटिक था, उसकी वो एटीट्यूड वहाँ पे दिखती थी. वो एटीट्यूड दिखाओ तब जाकर काम बनने वाला था दोस्तों. इंट्रेपिड, ट्रेपिड वर्ड मैंने बताया आपको, है ना, वहाँ से ये अपोजिट आया वर्ड. ट्रेपिडेशन, डर से कांपना. इंट्रेपिड, डर से नहीं कांपना. फिस्टी, लाइवली, एंथुजियास्टिक, बबली बट एग्रेसिव. ऑडेशियस इज अ नेगेटिव वर्ड, और वहाँ से हमने हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड देखा था कुट्सपा. क्या वर्ड देखा था? कुट्सपा. हिब्रू लैंग्वेज, इजराइली, दैट इज हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं कुट्सपा, समवन हु इज अ शेमलेसली बोल्ड गाय. ब्रेवेडो शो करना. एंड श्वासबकलिंग, श्वासबकलिंग स्वैग वाला. ओके, स्वैग वाला, रॉबिन हुड पांडे वाला. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. चलिए, ग्रेट. देन यू हैव अ रिक्रिएंट, प्यूसिलेनिमस, मिल्क्वेटोस्ट. क्या वर्ड है भैया, मिल्क्वेटोस्ट. एनीवे, these are the people who are fearful, coward और a traitor, धोखा देने वाला. रिक्रिएंट बोलते हैं इसको. ठीक है, इनफैक्ट इस रिक्रिएंट के ऊपर बाहुबली ने तगड़ा सा कैरेक्टर बनाया था, कटप्पा. ये सुनो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 1 साल तक हल्ला किया इन्होंने. ठीक है, I'd rather prove recreant to the oath I took before I realized the worth of a woman whose happiness I vowed to destroy. ठीक है, I'd rather prove recreant. मैं कावर्ड दिखा, मैं ट्रेटर दिखा, मैं धोखा देने वाला दिखा. कटप्पा ने धोखा क्यों दिया? सवाल यही पैदा हुआ ना. पूरी मूवी थी तो बाहुबली के ऊपर, पर कटप्पा की लॉयल्टी जो दिख रही थी, कटप्पा ऐसे सर झुकाकर खड़ा हो जाता था, भैया उसी पे पैसे वसूलते. पर आखिरी में कटप्पा ने लगा दिया. ठीक है भैया, ये बड़ी बात हो गई, और वो बड़ा पंगा हुआ, जिसकी वजह से बाहुबली 2 कंक्लूजन देखने की जरूरत पड़ी. प्यूसिलेनिमस, fearful, coward. ठीक है, pusillanimous approach of current leaders towards organized crime will not solve the problem. We don't need pusillanimous approach. We need aggressive approach, but that should not turn out to be a kind of rigid approach. ठीक है, रिजिड अप्रोच नहीं बन जाना चाहिए. ठीक है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक से डॉगमेटिक नहीं बन जाना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही अंतर बन जाता है. कोई बंदा ब्रेव होता है और कोई बंदा स्टॉन्च एक से बिलीवर बन जाता है कोई पर्टिकुलर चीज़ का. ठीक है भैया, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में बिलीवर हो, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ के स्टॉन्च बिलीवर हो. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. ओके, दैट इज कॉल्ड pusillanimity, cowardliness. ओके, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन, डर से कांपना. जैसे ये भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, डर से कांप रहे, दैट इज कॉल्ड pusillanimous. लेकिन से milquetoast, milquetoast is a timid and weak person who is easily bullied and intimidated. आसानी से उसको आप दबा सकते हो. ये सुनो, ठीक है, साइकोलॉजी इज अ डिजीज्ड पर्सन. milquetoast, केयरफुल विद दिस. ठीक है, ओके, मतलब ऐसा कहा गया कि भैया ये बंदा मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बोला. ठीक है, इज अ डिजीज पर्सन, मिल्क्वेटोस्ट, केयरफुल विद इट. बराबर है, मतलब टिमिड और वीक है. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम कैस्पर मिल्क्वेटोस्ट, दैट इज अ कैरेक्टर विच वॉज डेवलप्ड, है ना, विच वॉज एन कार्टून. ठीक है, बाई H.T. वेबस्टर. वेबस्टर ने कार्टून बनाया था 1924 में, कैस्पर मिल्क्वेटोस्ट, और वहाँ से वर्ड निकला
मिल्क्वेटोस्ट, रिक्रिएंट, प्यूसिलेनिमस, ठीक है, बराबर है, मतलब जिसका दिल छोटा है, ठीक है, डरपोक है, इसको कंचना दिखा दो, कंचना मूवी दिखा दो, ठीक है, कंचना 1, कंचना 2, कंचना 3, पता नहीं क्या ही है ना, आदमी डर जाए, है ना। ये बंदा कैसा है, जिसको कोई बुली कर सकता है, ठीक है, कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तगड़ा बुली हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड कॉय, कॉकेट, डिफिडेंट, डिम्यूर। अब दो वर्ड है डिम्यूर वाले, डिमर एंड डिम्यूर। ओके, कॉय इज वेरी शाई, but primarily that coyness is used to impress someone, to flirt someone. She gave him a coy smile, ठीक है ना, वो होती है ना, वो मतलब वो हम आपके कौन में ऐसा करके कुछ, पता नहीं मैं तो क्या ही कर रहा हूँ, सलमान खान ने अच्छा किया था और माधुरी दीक्षित ने अच्छा किया था। कॉय, यूजिंग शाइनेस, ठीक है, टू फ्लर्ट समवन। ओके, दैट इज हाउ द वर्ड इज कॉल्ड कॉकेट। कॉकेट का मतलब होता है फ्लर्टेशियस वुमन, शी इज अ बिट ऑफ कॉकेट, है ना, किसी को फ्लर्ट करती रहती है, दैट इज कॉल्ड कॉकेट, ठीक है। भाई इंडिया में मेल फ्लर्ट करे, अभी कपिल शर्मा, उसके शो में कोई भी विमेन आएगी, है ना, एक्टर एक्ट्रेस आएगी, उसको वो फ्लर्ट करेगा, सबको अच्छा लगता है। बट सेम स्टफ अगर कोई फीमेल कैरेक्टर कर दे तो ऐसा लगता है कि भैया उसकी तो मतलब इमेज अच्छी नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे नो, डिफिडेंट इज अ शाई, ठीक है, ही वॉज डिफिडेंट अबाउट हिज ओन सक्सेस, ही वॉज शाई अबाउट हिज ओन सक्सेस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिफिडेंट। डिम्यूर इज अ शाई वुमन, शी गिव अ डिम्यूर स्माइल, अ शाई स्माइल, ठीक है। मैनी ऑफ यू आर वेरी शाई, ठीक है, इन द क्लासरूम, इन एन ऑनलाइन क्लास, ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ यू, ठीक है दोस्तों। अगर आप डिम्यूर हो, शाई हो, भैया क्लास में मत रहो, क्लास में बोलो, टीचर के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो, इंपॉर्टेंट है। डिम्यूर, ठीक है, और डेमर बोल सकते हैं इसको, और डाइमर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, विच इज अ वर्ब, ठीक है। इट सेज द लॉयर वांटेड एन एडजर्नमेंट बट द जज डिमर्ड, जज ऑब्जेक्टेड। याद रखिएगा दोस्तों, ये डिम्यूर है, दैट इज शाई। इसके साथ ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये गलती मत करना, ये ऑब्जेक्ट की बात है, ठीक है, भैया रुको, ऐसा बोलना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, आई होप दिस इज अ वंडरफुल सेशन फॉर यू गाइस। ये सुनो, मुझे तो मजा आया, क्या नए नए वर्ड सीखे हमने, 7 ग्रुप ऑफ वर्ड सीखे हमने, और तगड़े वर्ड थे, ठीक है। दिस ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ब्रिंगिंग, यू कैन से, अस क्लोजर टू आवर ड्रीम। हमने जो सपने रखे हमारे साथ कि हम बड़ी कॉलेज में जाएंगे और एग्जाम को अच्छे रैंक से क्रैक करेंगे, ये हमारे लिए बन जाएगा। ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।